Okay, students, let us start. On Saturday, your revision test 2 is there, but Saturday की आपको holiday आ गई है, तो वो it will be on Monday now. ठीक है, right? नहीं, Saturday को आपकी छुट्टी है. कल आपकी ऑफलाइन छुट्टी है, सारी क्लासेस ऑनलाइन है, राइट? ऑफलाइन छुट्टी है कल, स्कूल नहीं आना, बट घर से आपकी क्लासेस लगनी है. इज दैट क्लियर? और सैटरडे को आपका ऑफ है, और सैटरडे वाला टेस्ट जो है आपका साइंस का वो अब होगा मंडे. ऑनलाइन 4 to 4:50 का टाइम है जो सैटरडे वाला है, और जो मंडे वाला है उसका टाइम तो आपको पता ही है 5:30 से 6:20 तक, राइट? चलिए लेट अस स्टार्ट द रिवीजन. वी वर डूइंग लेसन 9. कल हमने करे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. तो बच्चे, we see so many things around us. ठीक है, everything around us, everything, it makes up the environment. हमारे आसपास जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं? Environment. अब this environment, it has two types of components, living and non-living. Living components are known as biotic and non-living are known as abiotic. नई नई टर्म्स निकालते हो अपनी मर्जी से. इम्बायोटिक क्या वर्ड होता है? बायोटिक एंड एबायोटिक. What are biotic components? These are the living components of environment. What are the abiotic components? These are the non-living components of environment. Now students, coming to biotic components. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? Environment. बायोटिक प्लस एबायोटिक मिलके क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट. नाउ बच्चे, हमने करा बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग. तो इन बायोटिक कंपोनेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ their way of getting the food, how they obtain their food. So which are the 3 categories? Producers, consumers. You don't have any copy to note down anything? Decomposers. Right? So biotic components are divided into 3 categories. Producers, consumers, decomposers. What are producers? Producers are the organisms, as clear from the name, that produce their own food. कौन करते हैं? Green plants. So here green plants are known as producers. Why? Because they can make their own food by the process of photosynthesis. इसको एक और टर्म दी थी हमने, जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिमेंबर फर्स्ट लेसन में हमने करा था ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स. Autotrophs are the organisms which make their own food, right? So अब हम इनको एक टर्म और दे रहे हैं, producers. Why? Because they can produce their own food, right? Is this clear? Next आ गए consumers. As clear from the name, consumers क्या होते हैं? That consume the food. जो बना नहीं पा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. तो कौन कंज्यूम कर रहे हैं? बस. So depending upon the type of food they take, consumers are of 3 types. कौन कौन सी हैं? herbivores, carnivores and omnivores.
Is that clear? हाँ जी. Consumers are of three types. There can be three categories of consumers depending upon what type of food they eat. Right? They are herbivores, carnivores, omnivores. What are herbivores? Animals that eat only plants. Right? Herbivores, animals that eat only plants. What are carnivores? That depend on plants. Carnivores क्या है? Animals that depend on plants. Right? बच्चे जो herbivores हैं, क्योंकि वो प्लांट्स को डिपेंड करते हैं, सबसे पहले ये खाते हैं प्लांट्स को, so they are known as primary consumers. इनको हम और क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी मतलब फर्स्ट, पहले, प्राइमरी कंज्यूमर्स. राइट? सो जो कार्निवोर्स हैं, क्योंकि वो हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड है, सो दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओमनीवोर्स को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ये प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं. ओमनीवोर्स क्या है? ओमनीवोर्स, everything which can eat anything. Right? Is that clear? इतनी terms clear हो गई हैं ये? Is this clear to all? Now next ऊपर आ जाओ फिर से. Biotic components कर रहे थे ना हम. Producers, consumers, third category है decomposers. What are decomposers? That feed on dead bodies of plants and animals. Yes, feed on dead bodies of plants and animals. इसमें क्या आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या आते हैं इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. राइट? What are decomposers? That decompose the dead bodies of plants and animals. They feed on dead bodies. अब इनका फायदा क्या है? Because they feed on dead bodies. Because they feed on dead bodies, so they keep the environment clean. Right? Then number two, when they eat the dead bodies, they pass out they do excretion also. So with their excretion, the fertility of the soil is increased. So they help in increasing the fertility of soil. Is this clear to all? हाँ जी, clear हो गया? Decomposition का फायदा क्या है? Number one, it helps to clean the environment. Number two, decomposers, when they excrete, when they pass out the waste products, it adds fertility of the soil. Is that clear? Hurry up, do it. Now, all these biotic components, ये जो biotic हैं, they are dependent on each other. Yes, भव्या? कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी भव्या. एक्सक्यूज मैम, मैंने आपको कहना था कि फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैम, ये भी फिर डिकम्पोजर्स की एक टाइप है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिकम्पोजर्स का, राइट? ओके मैम. हाँ जी. तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. हाउ?
कैसे डिपेंडेंट है? ग्रीन प्लांट्स, इन्होंने अपना फूड बनाना है, तो व्हाट डू दे नीड? कार्बन डाइऑक्साइड। वो इनको कहां से मिल रही है? एनिमल्स से, राइट? तो एनिमल्स इसको फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो अब फूड बनाने के बाद ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए सरवाइव करने के लिए, राइट? फूड चाहिए इनको खाने के लिए, वो भी प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही हैं, जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तभी फूड की प्रोडक्शन होती है। बनाने क्यों आएंगे आपको? आपको याद होना चाहिए, इसमें से उठा उठा के टर्म्स आएंगे, ठीक है? इज दिस क्लियर? सो ये आपस में एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। नेक्स्ट आगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इसमें क्या आते हैं? सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर। Soil, air, water, temperature. These all are non-living components. These non-living components or abiotic components are also dependent on biotic components. Means biotic components and abiotic components. इनका भी आपस में तालमेल है. How? Air and water are required by plants to survive, to make food. टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से एनिमल्स में प्रॉब्लम आती है, राइट? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, सॉइल से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करना है प्लांट्स में, राइट? सो दे आर डिपेंडेंट ऑन एबायोटिक फैक्टर्स आल्सो। हम ये नहीं कह सकते कि एक के बिना अगर हम कंज्यूमर्स नहीं भी होंगे लाइफ में तो बाकी सारे सरवाइव कर जाएंगे, नो, राइट? या हम कहें कि हमें एबायोटिक फैक्टर्स की जरूरत नहीं है आसपास, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? नोट करना है ये, फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हरी आप नोट इट डाउन, hurry up everybody. Then we are going to start with the next topic, adaptations, habitat. Hurry up. इधर ध्यान दो। Hurry up, hurry up, hurry up. Let us move to next topic जल्दी से। Hurry up everybody. Done. Shall I start with next topic? हो गया इधर सबका? चलिए। बच्चे, our next topic is habitat. What is habitat? What is habitat? It is the natural place, dwelling place of an organism. What does it mean? It is a place where when an organism lives, हाँ, रहने वाली,
where an organism lives, grow, reproduce naturally. राइट वो जगह जहां पे एक ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, खाता पीता है, रिप्रोड्यूस करता है नेचुरली, अपने आप, अपने एक नोन एनवायरमेंट में, उसको बोलते हैं हैबिटेट, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। राइट अब एक और टर्म होती है अडेप्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्टेशन? special features special features that an organism possess to survive in that habitat। उस हैबिटेट पे रहने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म के पास वो स्पेशल फीचर्स होंगे नैतिक, वो ही सरवाइव कर पाएगा, और उन स्पेशल फीचर्स को बोलते हैं अडेप्टेशन। मींस अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत ठंड में रह रहा है, राइट, तो उसके अंदर ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं कि वो वहां पे सरवाइव कर रहा है, दूसरा और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर पा रहा। राइट कुछ भी राइट उन स्पेशल फीचर्स को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। राइट इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आ गया हैबिटेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स फाउंड ऑन अर्थ। One is terrestrial, other is aquatic. One is terrestrial habitat, other is aquatic. Right? What is terrestrial habitat? What is terrestrial habitat? Animals that live that live on land. They are known as having terrestrial habitat, जिनका habitat land है. Right? What is aquatic habitat? Animals that live in water. Aquatic means water. अब terrestrial भी तीन तरह का है. There are deserts, बहुत गर्म इलाके. There are mountain areas. एंड देयर आर ग्रासलैंड्स, प्लेन्स भी जिसको आप बोलते हो। राइट जी। इसी तरह एक्वेटिक में देयर आर फ्रेश वाटर, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स। देयर आर सलाइन वाटर या सीज, ओशंस। राइट फ्रेश वाटर में आप रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स भी लिख सकते हो। Is that clear? Is this clear to all? नोट करना फटाफट कर लो, फिर हम डेजर्ट स्टार्ट करेंगे आज। राइट hurry up everybody. गुड अगर हो गया तो।
हाँ जी, करें इसको इरेज, डेजर्ट पे आए। चलिए, अडेप्टेशन इन डेजर्ट। व्हाट इज डेजर्ट? क्या होता है डेजर्ट? A place which is very hot, right? Garam place, sandy area is there, less rainfall, very hot in summers in day and cold in night. ठीक है? Is that clear? This is desert की conditions. Now, which animals are able to survive in desert area? Best example is camel. और अगर हम प्लांट देखें तो कैक्टस. It is the best example. किक्कर भी होता है, but cactus is the best example to study. बच्चे किसी को कोई डाउट है पहले पूछ लो, फिर हमने कैमल स्टार्ट कर देना. अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. हरी आप. आज कैमल ही हो पाएगा. हाँ, क्या कोल्ड एरियाज में आते हैं माउंटेन्स? माउंटेन्स कोल्ड ही होते हैं. हिली एरियाज कोल्ड होते हैं. हाँ जी. कमिंग टू कैमल, नहीं कोई डाउट तो विल मूव फॉरवर्ड. कैमल के क्या होता है? नंबर 1, हम्प. हम्प टू स्टोर फैट, टू स्टोर फूड, right? It can survive without food for so many days because it has hump to store fat, right? Then it can survive without water for so many days because it can drink water up to 46 liters in one go without water for so many days, right? उसके बाद एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. बहुत कम यूरिन पास करता है. यूरिन नहीं पास करता तो ओए होए, यूरिन नहीं पास करता इट मींस वाटर का लॉस नहीं होता. ड्राई डंग, इसका जो डंग है वो भी ड्राई होता है. आप लिख नहीं रहे नैतिक? ड्राई डंग. देन उसके बाद इट हैज long eyelashes, long eyelashes that cover the eyes during sandstorms, right? Then long legs to protect the body from the heat of sun. सारा आपको लिखना पड़ेगा. इतना इतना लिखोगे तो नंबर कटेंगे. ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूं. लॉन्ग लेग्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हीट ऑफ सैंड. देन थिक लिप्स एंड टंग, थिक लिप्स एंड टंग टू ईट द प्रिकली प्लांट्स. जो कंडे वाले होते हैं ना वहां पे प्लांट सारे कैक्टस जैसे, उनको खाने के लिए थिक लिप्स एंड टंग. nostrils open and close. nostrils ये वाले, ये बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं. जब सैंडस्टॉर्म्स आती हैं ये बंद हो जाते हैं so that sand does not go inside the nose. hair to cover the ear. क्यों? ताकि सैंड कानों के अंदर ना चली जाए, राइट? डू नॉट स्वेट, पसीना आता ही नहीं. टू कंजर्व वाटर, दे डू नॉट स्वेट टू कंजर्व वाटर, राइट?
cover the ear so that sand does not go inside the ear. Okay, note it down everybody. Yes, Rishita, thick lips and thick tongue, they help to eat the prickly plants. प्रिकल्ड प्लांट्स होते हैं ना, स्पाइन्स होती हैं, तो जब उनको खाते हैं तो वो चुभते नहीं हैं, थिक होते हैं, खाए जाते हैं, राइट? बता तो दिया, अभी क्या बताया? टू ईट प्रिकली प्लांट्स. इसके अलावा बेटा देयर आर एनिमल्स, that special kind of animals found in desert that live under the soil during the day and comes out at night, जैसे कि desert rat and snake. Such animals they are known as nocturnal animals. Nocturnal animals. What are nocturnal animals? That remain inactive during the day and come out during the night. जब सैंड थोड़ी ठंडी हो जाती है, right? They come out of the sand during the night and become active. हाँ, अंदर रहते हैं पर सैंड गर्म होती है, चलना कहाँ पे, उन्होंने फूड कैसे खाना है? गर्मी होती है ना दिन में, रात में सैंड एकदम ठंडी हो जाती है. सैंड के अंदर नीचे रहते हैं ना, वहां पे थोड़ा ठंड होता है, गर्मी कम होती है, राइट? एनी डाउट? हरी आप ये नॉक्टर्नल टर्म लर्न कर लो. हु इज दिस? Okay students, we will be meeting tomorrow. Nocturnal हो